روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ دالوں کے بعد چینی کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں 100 کلو گرام چینی کی بوری 300 روپے مہنگی ہو گئی۔ چینی کی بوری کا ریٹ 8400 روپے سے بڑھ کر 8700 روپے ہو گیا ہے۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔ دالوں کی قیمتوں کے بعد چینی کی قیمت ایک بار پھر بڑھا دی گئی۔ ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں 100 کلو گرام چینی کی بوری کا ریٹ 300 روپے اضافے کے ساتھ 8700 روپے ہو گیا۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ میں چینی 92 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے نا، روزگار ہے نہیں یہاں پہ۔ اب 15 دن پہلے پورے روڈ پہ وارداتیں ہوئی ہیں اس روڈ پہ۔ اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا اس بارے میں جو ہے نا وہ کاسٹ ریٹ زیادہ پڑتا ہے، گاہک نہیں پڑتا، اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریٹ کم کر دے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت پھر سے بڑھ رہی ہے، انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ دکاندار من چاہے داموں پر چینی فروخت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ بالکل ہی ایکشن نہیں لے رہی، ہر چیز کا ریٹ بڑھایا ہوا ہے۔ گیس 250 روپے تک گئی ہے، 220 تک اب مل رہی ہے، 30 روپے کم ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث ہر بندہ پریشان ہے، حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ شہری اولیے میں واسا کے ادھورے پروجیکٹس نے شہریوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ ملتان کے الفیصل کالونی کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا نے سیویج لائن ڈالنے کے بعد سڑک بنانا بھول گئی۔ سڑک پر موجود گڑھوں کو بھی بھرا نہ جا سکا۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔ ملتان میں واسا کے ادھورے پروجیکٹ شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ معصوم شاہ روڈ کے قریب الفیصل کالونی کھنڈرات میں تبدیل۔ واسا نئی سیوریج لائن ڈالنے کے بعد سڑک بنانا ہی بھول گئے۔ سڑک پر موجود گڑھوں کو بھی نہ بھرا جا سکا۔ شہری واسا کی کارکردگی پر پھٹ پڑے۔ سیوریج کی ضرورت نہیں تھی جو انہوں نے اب ڈالی ہے۔ اس سے پہلے ہی معاملہ بہت ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہ اب ڈالنے کے بعد اور ہم مسائل میں آ گئے ہیں۔ تقریباً 9 ماہ سے پورا علاقہ پریشان ہے۔ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان کو کہتے ہیں ٹھیکیدار کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس جی ایسی بات ہے، تو ان کے یہ کہتے ہیں جی کاروائی زیادہ اوپر سے ہوگی تو پھر ہم کریں گے۔ ہم تو چلے ینگ ہیں، ہم تو کیسے نہ کیسے چلی جاتے ہیں، لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیسے جائیں گی، راستہ ہی بند ہے، ٹھیک ہے۔ جس کسی کو بھی کہا انہوں نے کہا جی یہ جی مہینے میں ہو جائے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا 9 ماہ سے پروجیکٹ پر کام جاری ہے، ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا۔ پہلی بار لائن ڈالی گئی تو سڑک بیٹھ گئی، دوسری بار لائن ڈالی تو اب سڑک بنانا بھول گئے۔ جب پہلی بچھائی تھی نہ اس میں روڈ ڈالا گیا ہے، نہ اس میں سیمنٹ ڈالا گیا ہے، پانی تھا نیچے، پانی کے اوپر ڈالتے یہ چلے گئے ہیں۔ وہ بعد میں اوپر جب مٹی ڈالی گئی ہے تو یہ بیٹھ گئی ہے۔ بڑی بہت تنگ دو کے بعد ان کو کہہ کے ان سے بھیڑ کے پھر جا کے انہوں نے جو ہے نا یہ دوسری دفعہ لینڈ ڈالی ہے۔ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں کسی کی، اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن اتنی تنگی ہے یہاں کے لوگوں کو، اور یہاں کے آپ دیکھ رہے ہیں نمازی حضرات سارے جو ہے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو گئی اور ہیں۔ مسجدیں خالی ہوگی۔ مسجد کا راستہ ہی ہے والا، یہ سارا راستہ مسجد کا راستہ ہے۔ اہل علاقہ کا ماننا تھا خستہ حال سڑک پر سے گزرنا دشوار ہے۔ نمازی حضرات، طلبہ و طالبات، خواتین اور بزرگ سب کو ہی مشکل پیش آتی ہے۔ انتظامیہ جلد از جلد سڑک کی تعمیر یقینی بنائے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ شہری اولیے میں صاف پانی کی فراہمی کا خواب کب پورا ہوگا؟ ملتان شہر میں سیویج اور واٹر سپلائی کا 616 کلومیٹر سے زائد کا نیٹ ورک بوسیدہ قرار۔ شہریوں کے لیے صاف پانی کا حصول خواب بن کر رہ گیا۔ یہ رپورٹ۔ ملتان شہر میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا 616 کلومیٹر سے زائد کا نیٹ ورک بوسیدہ قرار۔ شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور۔ واسا کی طرف سے 148 کلومیٹر سیوریج کے نیٹ ورک کو تبدیل کرنے کے لیے 1.5 ارب روپے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ منصوبوں پر کام کی سست روی کے باعث شہری زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ راستہ نہیں تھا جانے کا اندر۔ یہ 9 ماہ سے یہ اپنا سب کو احتجاج کر کے ہر کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ملتان کے علاقے گھنٹہ گھر، حسینہ گئی، طارق روڈ، معصوم شاہ روڈ اور پیرا غائب روڈ پر سیوریج لائن بوسیدہ ہیں۔ چوک کمہارا والا، ممتاز آباد، کسوری چوک، بہاری چوک اور BCG چوک کے علاقے میں بھی لائنیں بوسیدہ ہیں۔ بوہر گیٹ، دولت گیٹ اور حرم گیٹ کے علاقے بھی لائنیں عمر پوری کر کے بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اگر پانی صاف آ رہا ہوتا تو گورنمنٹ یہ فلٹر پلانٹ کیوں لگاتی؟ اس میں کوئی غلطیاں ہیں تو عوام کو خود ہی وہاں ریفر کیا جاتا ہے کہ فلٹر پلانٹ پہ جائیں، فلٹر پلانٹ پہ جائیں، جا کے پانی صاف لے کے آئیں۔ واسا کی طرف سے نوابپور روڈ، سورج میانی، جسٹس حمید کالونی، سورج کنڈ روڈ، بوہر گیٹ روڈ پر بھی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے جاری ہیں۔ پورے شہر میں لائنوں کی تبدیلی کے لیے اربوں روپے کے بجٹ کی ضرورت ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت صاف پانی کی فراہمی کا وعدہ پورا کرے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔
लिया में म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी, मोहल्ला नूराबाद में सफाई की अबतर सूरत-ए-हाल के साथ सीवरेज मसाइल भी शिद्दत इख्तियार कर गए। सीवरेज का पानी सड़क समेत गली में जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। लिया में बल्दियाती इदारे बहाल होने के बाद शहरियों के मसाइल में इजाफा हो गया है। म्यूनसिपल कमेटी अमले की नाकिस कारकर्दगी के बायस लिया के गली मोहल्लों में सीवरेज समेत सफाई के मसाइल पैदा हो गए हैं। मोहल्ला नूराबाद में सीवरेज के गंदे पानी के जोहड़ बन गए। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम लिया शहर में गली मोहल्लों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। मुल्तान में तजावुजात माफिया सरगर्म, शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात बनने का सिलसिला थम न सका। चौक शहीदा रोड पर भी तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए, इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट। मुल्तान में जगह जगह तजावुजात माफिया का कब्जा। शहर की अहम शराइन भी तजावुजात माफिया की दस्त बर्द से महफूज नहीं। चौक शहीदा रोड पर भी तजावुजात बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आगे तक आए हैं आप, इतना सारा गंद वाला डब्बा पड़ा है यार, अच्छा खासा ये फर्क है, ये वाला गंद वाला डब्बा पड़ा है यहाँ पे। गंद वाले पीछे कर ले आके थोड़ा साइड में चलिए, खड़ी करें। मुल्तान में तजावुजात की भरमार पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं, जिनकी वजह से ये सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रोही की टीम ने इस माफिया को बेनकाब करने की कोशिश की तो कैमरा देखकर तजावुजात बनाने वाले कुछ भाग गए, कुछ हमेशा की तरह आए बाएं शाएं करने लगे। ये रेडी आपकी है? ये आप कह रहे थे, अभी मेरे पास वीडियो है। मुल्तान में तजावुजात की वजह से सड़कों पर से गुजरना इम्तिहान बन चुका है। चौक शहीदा, गुलगश्त, घंटा घर और समीजाबाद में मुस्तकिल तजावुजात कायम हो चुकी हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। जामपुर में किसानों के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया। किसान जहां खाद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं, वहीं डीलर्स भी किसानों के हालात देखकर खासे परेशान हैं। किसान और डीलर्स इस बारे में क्या कहते हैं, जावेद इकबाल हमें रिपोर्ट करेंगे। गंदम की काश्त के लिए खाद की जरूरत पड़ी तो मार्केट से यूरिया खाद गायब कर दी गई। जामपुर के किसान खाद न मिलने पर इंतहाई परेशान हैं। कहते हैं कि एक बोरी खाद रोजाना मुश्किल से लेकर आते हैं, जिससे गुजारा नहीं होता। दुकान से कंट्रोल रेट पर सिर्फ एक बोरी ही मिलती है। खाद इतना सही मिलती पई है, लेकिन एक जरा शनाख्ती कार्ड से एक बोरी मिलती है। सा कौन मतलब है मेरी 20 बीघे कणक है, तो मेरे को तो 10 बोरियां जरूरत है। 10 बोरियां वाला बंदा मैं एक बोरी क्या करे सा। ही वास्ते हुकूमत नाल सारा मुतालबा है कि साकू 10-15 बोरियां एट ए टाइम देवन, ताकि सारी फसल है जरी ना वो बार वक्त पानी खाद गिन सके तो ज्यादा थी सके। किसानों का कहना था कि कंट्रोल रेट पर दुकान से खाद मिल तो रही है, मगर पूरे दिन में सिर्फ एक बोरी ही मिलती है। एक बोरी नाल गुजारा नहीं थिंदा। 20 बीघे मेरी कणक है, तलो खाद नहीं सके गया था, केड़े मरूं फिजरो के आयूं सर। एक बोरी मिली है, वो लाइन लगता है। किसानों की मुश्किलात पर डीलर अब्दुल हमीद का मानना था कि किसानों को मिलने वाली खाद ना काफी है, मगर इन्हें खाद की जो सप्लाई मिल रही है वो कंट्रोल रेट पर शफाफ अंदाज में तकसीम कर रहे हैं। अब हम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फी शनाख्ती कार्ड हम खाद दे रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी हिदायत है, अगर किसी का रकबा ज्यादा है और वो गोशवारा जात हमें फराहम करता है तो हम गोशवारा जात में भी खाद फराहम कर देते हैं। गंदम की काश्त के मौसम में खाद का बहरान किसानों और डीलर्स के लिए परेशान कुन है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो खाद की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि किसानों की मुश्किलात दूर हो सके। खाद के असूल के लिए जहां किसानों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर डीलर हजरात का भी यही कहना है कि पीछे से उनको जो खाद फराहम की जा रही है वो मुहैया कर रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि किसानी की मुश्किलात को देखते हुए खाद की फरावानी को वाफिर मिकदार में बनाए ताकि किसानों की मुश्किलात भी हल हो सकें। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। लिया में खाद न मिलने पर काश्तकार आपस से बाहर हो गए। डीलर की दुकान के सामने काश्तकारों का धरना चुबारा रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खुलवा दी। लिया में यूरिया खाद के बढ़ते बहरान ने काश्तकारों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। काश्तकारों ने खाद न मिलने पर लिया में चुबारा रोड को बंद कर दिया। नारेबाजी की। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि यूरिया खाद न मिलने से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं। खाद अगर मिलती भी है तो ब्लैक में मुयस्सर है। इंतजामिया खाद बहरान के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। किसानों ने ऐलान किया कि अगर खाद की फराहमी मुमकिन ना बनाई गई तो फिर से एहतजाज करेंगे। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खुलवा दी।
बहावलपुर में जहरीले धुएं से स्मोक में इजाफा, भट्टा जात पर गैर मेयारी मटीरियल जलाया जाने लगा। रवायती भट्टों पर ब्लोअर टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाई जा सकी। जहरीला धुआं उगलने वाले भट्टे वबाल जान बन गए। बहावलपुर में भट्टा जात के बायस स्मोक में इजाफा जारी है। भट्टा जात पर गैर मेयारी मटीरियल जलाया जाता है। रवायती भट्टों पर ब्लोअर टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाई जा सकी। खैरपुर और अहमदपुर में मुख्तलिफ भट्टाजात ब्लोअर के बगैर चलने लगे। यजमान, हासिलपुर, जहांगीवाला, तहसील सदर बहावलपुर के भट्टे भी स्मोक फैलाने में शामिल हैं। जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद भट्टाजात को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना किया जा सका। क्रिसमस की आमद है। डीजी खान में आरपीओ वकास नजीर ने डीपीओज को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम दे दिए। कहते हैं क्रिसमस के पेश नज़र गिरजाघरों और पार्क्स में पार्किंग का इंतजाम मुनासिब फासले पर कराया जाए। डीजी खान में आरपीओ मोहम्मद वकास नजीर ने चारों डीपीओज को क्रिसमस के पेश नज़र रीजन भर में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आरपीओ वकास नजीर का कहना था कि मजहबी इबादतगाहों, पब्लिक मकामात समेत दीगर अहम जगहों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। क्रिसमस के पेश नज़र गिरजाघरों और पार्क्स में पार्किंग का इंतजाम मुनासिब फासले पर कराया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास हुआ। 35 करोड़ 62 लाख रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गईं। अमजद मलिक की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान के इजलास में मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरई, डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी और चीफ ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली समेत यूसी चेयरमैनों ने शिरकत की। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अरई ने कहा कि हर यूनियन कौंसिल में 8% पर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। अगर मुद्दत में तोसी न हुई तो ये आखिरी इजलास होगा। तोसी से मुतालिक अदालत का फैसला आना बाकी है। अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हुए हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होना है। यूसी चेयरमैनों ने कहा कि इनके मुकर्ररा मुद्दत इनको दी जाए। स्ट्रीट लाइट्स फौरी लगवाने का हुक्म दिया गया है। मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 100% के 100% हमारे इंशाल्लाह काम होंगे। जैसे कि हमें पीछे से आर्डर हुआ है अदालत से, हमारे मेयर साहब ने भी इंशाल्लाह फुल जंग लड़ी है। इजलास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान ने भी शिरकत की और ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से मुल्तान में तकरीब मुनक्किद हुई है। अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन 30 दिसंबर को होगा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मुल्तान के रमादा होटल में जोराने की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें उम्मीदवार सदर फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर नोमान अदरीस बट, उम्मीदवार सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ गोहर, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, साबिक सदर फेडरल चैम्बर मियां तनवीर शेख, साबिक सदर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, मरूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर के उम्मीदवार नोमान अदरीस बट ने कहा कि वो डिलीवर करने वाले लोग हैं। रीजनल इलेक्शन दफ्तर मुल्तान को बहाल करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सबकी ख्वाहिशात भी यही हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबके ताउन से मैं इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी पूरी टीम जीतेगी। उम्मीदवार सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ गोहर ने कहा कि पहले भी काम करते रहे और आइंदा भी करेंगे। वो जो इस्लामाबाद का हेड ऑफिस है वो कम से कम यूबीजी ने बनाया और आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया। साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर मियां तनवीर शेख ने कहा कि 30 दिसंबर को कराची जाकर वोट देंगे। इंशाअल्लाह जीत यूबीजी की होगी। हमारा इलाका मिलकर एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ चलने वाला है और हम इंशाअल्लाह इससे कबल भी और अब भी यूबीजी के साथ हैं। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यूबीजी ने माजी में भी इलेक्शन जीते, अब भी वो जीतेंगे। यूबीजी ने पास्ट में भी इलेक्शन जीते हैं, इंशाअल्लाह इस दफा भी जीतेगी और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी हम जीतते रहेंगे। तकरीब में वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल, शेख फैसल सईद, चेयरमैन मोटर कार डीलर एसोसिएशन अजहर मुमताज टीपू, साबिक नायब सदर FPCCI चौधरी जाहिद, साबिक सदर फजल इलाही शेख समेत डेरा गाजी खान, रहीम जार खान, खानेवाल, भावलपुर चैम्बर्स के अहदेदारान ने शिरकत की और यूबीजी की खिदमात को सराहा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।